किसानां ते सरकार विचकार 8वें दौर की गलबात भी बेनतीजा। 15 जनवरी नूं अगली बैठक, किसानां ने फड़ी तख्ती, या मरांगे या जितांगे। बाबा लखा सिंह खेती अंदोलन के मुद्दे ते दूत की भूमिका निभाउण दा कर रहे दावा। क्या सरकार नूं भी झुकना पवेगा ते किसान भी नरम होणगे। महिंदर कौर ने कंगना रनौत खिलाफ बठिंडा की अदालत च मानहानि का केस किया दायर। अदाकारा ने बेबे लई वरते सन इतराजयोग शब्द। पंचकूला दिया 2 पोल्ट्री फार्म च बर्ड फ्लू की पुष्टि। पंजाब ने पोल्ट्री के इंपोर्ट ते लगाई रोक। मुकेरिया के यूथ कांग्रेस प्रधान की शरेआम हवाई फायर करदिया दी वीडियो आई सामने। बलविंदर ने वीडियो की टाइमिंग ते चुके सवाल ते मंगी माफी। अज यस या नो नहीं, या मरांगे या जितांगे, ये तख्तियां ते लिख के किसान केंद्र दे नाल मीटिंग करन पहुंचे, पर अड़ी मोदी सरकार ने भी नहीं छड्डी। इसे लिए 8वें दौर की गलबात भी बेसिटा रही। हुण 15 जनवरी नूं 9वें दौर की गलबात होएगी ते दिल्ली बॉर्डर ते लड़ाई जारी है। खेती कानून के मुद्दे ते किसानां ते केंद्र सरकार विचकार रेड़का जारी है। किसानां ते सरकार दरमियान मीटिंग बेसिटा रही है। अगली बैठक 15 जनवरी नूं होवेगी। किसानां ने फिर दोहराया कि सरकार खेती कानून रद्द करे अते MSP की कानूनी गारंटी देवे। जो सरकार ਦੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆ, ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੈਡਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ 15 ਤਰੀਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਛ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ 70 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੈਅ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖਤੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਈਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1.25 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੀ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੰਨਾਂਗੇ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ बैठक च किसानां वालों रखियां 4 मुख मंगां चों 2 मंगां सरकार ने मन लईआं सन। पराली ऑर्डीनेंस किसानां लई सरकार ने सोध का ऐलान किया सी। इस तो इलावा सरकार वालों बिजली सोध बिल वापस लैण का ऐलान किया गया सी। हुण सरकार नूं उम्मीद है कि 15 जनवरी की मीटिंग सार्थक रहेगी। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी। लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर
ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। स्वाभाविक रूप से अंदर जब चर्चा होती है तो बहुत सारी बातें होती हैं और उन सब बातों को सार्वजनिक करना उचित नहीं होता, लेकिन जब चर्चा हुई और चर्चा में निर्णय तक नहीं पहुंच सके तो निश्चित रूप से कई विषय ऐसे हैं जो उनके भी ध्यान में आए, कई विषय ऐसे हैं जो हमारे भी ध्यान में आए। तो इसलिए जब अगली चर्चा होगी तो अगली चर्चा में वो सब बातचीत करके ही दोनों पक्ष बैठेंगे। 11 जनवरी ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੂਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, इस बारे दस्सण दे लई बाबा लखा सिंह रासी नहीं ने। अच्छा, ये बताइए कि किसानों को आपका मीडिएटर के तौर पर कृषि मंत्री से मिलना गवारा है, पसंद है? उन्होंने एतराज नहीं है इस बात पर? क्यों एतराज है? जे एतराज करेंगे भी तो मैं तो कुछ नहीं वहाँ से लेना, मैं तो उनका दूत बन के दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ। लेकिन वो इस बात को मानते हैं कि आप हमारा दूत बन के जाइए? ना माने, हमारे दिल में तो है, तो हमने ये करना है, हम तो अपनी कोशिश करनी है, कामयाब हुए ना हुए मुझे वो नहीं मालूम। तो जो बातें हमने मंत्री साहब को बोला, कुछ क्या क्या बोला आप ये बता दीजिए ना। कुछ रूल नहीं, वो बोल नहीं सकते हो, काफ़ी मुद्दे हैं जिनसे हमने काफ़ी डूंघाई से बात की है, काफ़ी सुझाव दिए हमने और उस सुझावों का जवाब भी मिला मुझे। आप मुझे 4 सुझाव बता दीजिए आपने क्या दिए। ऐसे भाई, मैं भी किसान की बात कर रहा हूँ, आप भी किसान की बात कर रहे हैं, मैं भी सरकार की बात कर रहा हूँ, आप भी सरकार की बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो हमारी बात हुई है वो पूरी सेट हो जाए, उसके बाद कल शाम को परसों को अभी मीडिया में आ जाएगी। अगर नहीं सेट होती मैं बोलता हूँ फालतू कई जमा मैंने ये किया, मैंने बात वो की, वो माने ना, वो गल क्या बनेगा? क्या 3 में से कृषि मंत्री किसी 1 या 2 कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार है या अमेंडमेंट के लिए तैयार है? देखो, हर तरफ से वो बात करने के लिए तैयार है। नहीं, बात तो बड़े टाइम से चल रही है। वो जुदा बात थी कि जो सजा दिए है, अगर उनके दिल में बैठ जाए तो कुछ ना कुछ तो मसला हल हो ही सकता ना। हर कुछ चेंज भी हो सकते हैं, कुछ पक्के वही रह सकते हैं। आपको इतनी आशा है कृषि मंत्री से बात करने के बाद, तो आप बताइए ना कि ये चीज हो सकती है। हो सकती है। क्या चीज? जो संघर्ष चल रहा है उसको खत्म करने के लिए सभी कुछ हो सकता है। सरकार पीछे हट जाएगी कृषि कानून से और एमएसपी की गारंटी देगी? देखो, हम नहीं चाहते कि सरकार की भी बेइज्जती हो और किसानों की भी बेइज्जती हो, हमने दोनों तरफ देखना है। सरकार की भी अपना जो इज्जत बरकरार है और किसानों की इज्जत भी बरकरार है। एक छोटे ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਸਪਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲਓ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ 2 ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ ਲੈਬ 'ਚ ਕੁੱਲ 3 ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ पंचकूला पहुंची है। एक छोटा सा ब्रेक। बीजेपी लीडर सुरजीत कुमार जियाणी खेती कानून के मुद्दे ते इन्हां दे लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं जिस ते किसानां नूं वड्डा इतराज़ है। पहले इन्हां ने कहा कि खेती अंदोलन लीडरहीन है,
ਨੱਕ ਤੇ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਲਟੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। और मुझे ये समझ आ गई कि जत्थेबंदियां फैसला करना चाहती ही नहीं है, ये गड़बड़ करना चाहते हैं और गड़बड़ करके ये आज मूवमेंट हो गए। भोले वाले किसानों को ये गुमराह करके, अब कहते कोई गुमराह कैसे हो जाते हैं, अब लोग पूछते हैं गुमराह कैसे हो जाते हैं। जब उन्होंने स्टेजों पे कहा कि हमारी जमीन, वो डल्ले वाला कल भी बोल रहा था कि हमारी जमीनें बचानी है कि नहीं बचानी, जमीनें चली जाए, उनसे पूछो यार कहाँ जमीनें जा रही है। किसान जत्थेबंदियों की नीयत ही नहीं है कि हम फैसला करें, ना वो बात करते हैं, वो झूठ को सूट मार के लोगों को बॉर्डर पे लाके छोड़ दिया। उनकी कोई चिंता नहीं है, बस वो मीटिंगें कर रहे हैं, अच्छा अपना अच्छा बातें कर रहे हैं और उनसे हमने कोशिश करते हैं बात करनी, बात नहीं करते। हम लीडर से किसी से बात करें, उनका वो लीडरहीन है, उनके पास तो नेता ही नहीं है कोई। जाके अगर मीटिंग में होते हैं तो वैसे मुंह पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, कुर्सी को पीछे करके बैठ जाएंगे, फट्टी ले लेंगे यस और नो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरी प्रार्थना सभी से है, किसान भाइयों से है कि जत्थेबंदियां आपका भला नहीं चाह रही है। अगर किसान हित की बात होगी तो आधे घंटे में फैसला हो जाएगा। सरकार किसान हित में चाहती है, तो ये जो मूंछकार नाककार अपना कोई और हित कहीं सेकना चाहते हो कि हम लोगों को गुमराह करके सरकार की छवि खराब करें, सरकार हमें पकड़ के जेल में डाले और लोगों को यहाँ से खदेड़े, और हम जब 3-4 महीने बाद जाएं तो पंजाब में हमें माला डाली जाए। बाबा ये झूठ के पलंदे ज्यादा नहीं चलने वाले। मैं राज्यपाल से कहता हूँ तेरे घर के आगे मैं गोबर छिटा के हर 200 आदमी बिठा कर तेरी मुर्दाबाद करूँ, क्या कैसा लगेगा। बीजेपी लीडर सुरजीत कुमार जियाणी गृह मंत्री अमित शाह नाल मुलाकात करके आए ने पंजाब दे हालातां दी रिपोर्ट दित्ती। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ। और मुझे ये समझ आ गई कि जत्थेबंदियां फैसला करना चाहती ही नहीं है, ये गड़बड़ करना चाहते हैं और गड़बड़ करके ये आज मूवमेंट हो गए। भोले वाले किसानों को ये गुमराह करके, अब कहते कोई गुमराह कैसे हो जाते हैं, अब लोग पूछते हैं गुमराह कैसे हो जाते हैं। जब उन्होंने स्टेजों पे कहा कि हमारी जमीन, वो डल्ले वाला कल भी बोल रहा था कि हमारी जमीनें बचानी है कि नहीं बचानी, जमीनें चली जाए, उनसे पूछो यार कहाँ जमीनें जा रही है। इस कानून पढ़ के देखो कहाँ जमीन जा रही है। आपकी जमीन चली जाएगी, बड़े घराने आके यहाँ पे कब्जा कर लेंगे, आपके जमीनों पे लोन, यानी कि गलत अफवाहें फैला के ऐसी बात अडानी अबानी को मोदी साहब से जोड़ के मोदी साहब का चेहरा खराब करने की जो कोशिश हो रही है। और उसके अंदर देखना पड़ेगा कि मोदी साहब तो पूरे देश के है, प्रधानमंत्री है, 135 करोड़ लोगों का है। मोदी साहब ने तो आपके परिवार का भी कभी कुछ नहीं किया, परिवार जैसे चल रहा है उनका चल रहा है। और जो अगर सच्चा और नेक और ईमानदार आज कोई देश को मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बाकी जो पार्टी है साथ दे रही है, तो इसलिए दे रही है कि मोदी साहब का चेहरा खराब हो, ये बदनाम हो। और इनको ये समझ आ गई है कि मोदी साहब दूसरी बारी प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार भी बनेंगे, चौथी बार भी बनेंगे और 5वीं बार भी बनेंगे। और मोदी साहब जब तक जिएंगे देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि देश के लोगों का इन्होंने काम किया। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। की नीयत बिल्कुल साफ है। अमित शाह जी ने कह दिया, तोमर साहब ने कह दिया कि कानून वापस नहीं हो सकता। फिर इसके बाद में फिर सरकार की कहानी खराब है। जब सरकार ने कह दिया ये कानून वापस नहीं हो सकता तो सरकार तो साफ है। अब नीयत खराब तो इनकी है ना। जब मीटिंगें जो कैंसिल हुई, क्यों हुई? जब अमित शाह जी से 8 की मीटिंग हुई और अमित शाह जी ने सारी बातें किसानों के हक की बोल दी, भी ये कर देते हैं, जो करा लो, जो किसान की हित की बात कराओ, किसान खुशहाल चाहिए देश का, और बोल के प्रपोजल भेज दी। उन्होंने प्रपोजल पढ़ के ये कहा कि हमें तो यस और नो चाहिए। जब यस नो आ जाती है तो महत्व नहीं रह जाता किसी बात का, मीटिंग का महत्व नहीं रह जाता। सरकार ने मीटिंग बुलाना उचित ही नहीं समझा। जब यस और नो की बात है तो नहीं है, तो किसान जत्थेबंदियों ने कहा कि हम यस नो से आगे बढ़ के बात करना चाहेंगे। तो किसान जत्थे अपनी बात से मुकर रही है या सरकार ने तो पहले दिन कह दिया था कि हमारी कोई अक्कड़ नहीं है, हम किसान के साथ हैं। ये कानून अंग्रेजों के टाइम में बने, कानून बाद में बने हैं, कानूनों में शोध हुई है। और आपका शोध से किसान का भला होता है, तो आप बिल के लिए अड़ी क्यों करते हो, कानून के लिए अड़ी क्यों करते हो? अड़ी इसलिए कर रहे हैं कि हम यहाँ बैठे रहे। और उनकी हिम्मत भी नहीं जत्थेबंदियों की। अगर सामने किसी, मैंने कहा आप मोदी जी से मिल लो, कैसे मिले मोदी जी से? उनकी बात में झूठ है। मोदी के सामने जाए, झूठा आदमी किसी के सामने नहीं जाता है। ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਆਣੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ बीजेपी लीडर सुरजीत कुमार जियानी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की शिकायत गृह मंत्री अमित शाह ਨੂੰ ਕੀਤੀ कि पंजाब 'ਚ ਉਹ कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे। तो उधर सुखबीर सिंह बादल ये कह रहे हैं कि कैप्टन खेती अंदोलन ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, यानी कि सुखबीर ਤੇ जियानी कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, बीजेपी ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ IG SPs SSPs ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ? ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ IG ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, SSP ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ IG ਤੇ SSP ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ। बीजेपी ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਏ। ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। जोवें चाहते हुण कैप्टन साहब नचाउण लग गए। जैसे कि गुंडा राज पंजाब में हो गया और लॉ एंड ऑर्डर आज तहस नहस हो गया। हम इसके लिए बात करके आए थे भी लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में होना चाहिए, सभी को अधिकार है। प्रजातंत्र देश का नजायज फायदा जो लोग उठा रहे हैं उनको कुछ ना कुछ सख्त शब्दों में जवाब दिया जाए। अब कैप्टन साहब तो बिल्कुल हथियार डाल दिए हैं। कैप्टन साहब ने हथियार डालने का कारण क्या है कि जो तीक्ष्ण सूद जी के घर के आगे गोबर जो डाला था और ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की और धमकियां और गालियां तक दी गई, उस पर जिस SHO ने पर्चा किया था, पर्चा भी कैंसिल करके और उस SHO का तबादला कर दिया गया। जैसे अरिजीत सिंह ग्रेवाल के विरुद्ध जो लोग बोल रहे हैं और उन लोगों ने खुले चैलेंज देते हुए कहा कि इसकी जमीन में हम कब्जा कर लेंगे, इसको बढ़ने नहीं दें, इसके ये जो बातें कही, अब सब जो बोले गए और बड़ी धमकियां दी गई, उस जो SHO ने जो पर्चा किया उसका भी तबादला कर दिया गया। हम ये मतलब मिलके आए हैं कि ये क्या हो रहा है और ऐसे कैसे चलेगा। ये खून खराबे की ओर जो है दिशा पंजाब ने आगे भी 12-13 साल जो सामने भोगा है, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज पंजाब में बहाल कराई जाए और कैप्टन साहब को चेतावनी दी जाए कि आज आपकी सरकार है और आप इसको सख्ती से काम लो। पंजाब दी बेबे बारे कंगना रनौत ने इतराजयोग शब्द वरते। पूरा पंजाब इस एक्ट्रेस के दिवाले हो गया। वैसे पहला बेबे भी कंगना नूं गल्लां ना समझाउंदी सी, पर हुण महिंदर कौर ने एक ऐसा कदम चुकिया है कि कंगना दी मुश्किल वध सकती है। 80 सालां दी आ बेबे बनी शेरनी, कहंदी पुत हटिओ ना हुण बहुती देर नहीं। जथियां च पहुंच गए निहंग गुरु दे, होर दस बीबा तैनू की औड़दा नी। ABP न्यूज़ उत्ते लाइव देख लई, मैट्रो दे अगे अगे घोड़ा दौड़दा। मेरे बारे इतने रख ला के कोई बुढ़ी 100 रुपया लाउंदी, इतने तो रौला पै गया सारे पिंड च, सारे इतने असने भार चके 100 रुपया है तेरा भला हो जाए। 100 रुपया मेरे किस काम आऊगा? मेरा भावें 10,000 का नुकसान हो जाए तो नरमा चुक के मेरा कोई भावें आपके घरों ले जाए रख ला, तो मैं उत्थे 100 रुपये पिछे जाऊँगी। मैंने फसल नहीं लोड़ी दी। गलत बोलती है, इस तरह ना बोले मैंने। ਇਹ
ਬੇਬੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਗਲਤ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗਦਾਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਦੀ ਟਵੀਟ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ JMIC ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 499/500 IPC 'ਚ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੀ ਹੋਈ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਭਾਰਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ PR ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਖਾਸੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆਂ ਦੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦੀ ਇਸ ਤਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਇਹ ਬੇਬੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਰੁੱਝ ਕੇ ਕੁੱਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸਿਰਤਾ ਚੋਣੀਆਂ ਨਰਮ ਚੁਗਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਆਂਟਲ ਨਰਮਾ ਚੁਗਦੇ ਮੈਂ 700 ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਚੋਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਕੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨਰਮਾ ਗਾਂਹ ਚਾਹ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਰਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਭਾਅ ਦਾ 5000 ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਗਲਤ ਬੋਲਦੀ, ਕਮਲੀ ਆ ਉਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਸ ਜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਲਾਣਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਜਾਊਂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਚਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। जोश, जज्बा, जुनून।